Hello students, let's continue the chapter number 10, states of matter, gaseous and liquid states. From this chapter, today's our first topic is Dalton's law of partial pressure. Student, Dalton not only put forth the atomic theory but also made several contributions and understanding of the behavior of gases. He formulated the law of partial pressure. This law is applicable for those gases which do not react chemically on mixing. The pressure exerted by an individual gas in a mixture of two or more gases is called partial pressure. It is also the pressure that each gas would exert if it were present alone. So student, what is the partial pressure actually? The partial pressure is nothing but a pressure exerted by an individual gas in a mixture of two or more gases or two or more non-reacting gases. मीन्स अगर एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल कर देंगे तो हर गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, हर गैस का जो अपना प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे. एंड व्हाट इज डाल्टन लॉ? So, the total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of the partial pressure of the individual gases in the mixture. It is the Dalton law. मैं repeat कर रही हूँ student. The total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of the partial pressure of individual gases in a mixture. हम लोगों ने बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर ले लिया है. गैस नंबर 1 का पार्शियल प्रेशर P1 है, गैस नंबर 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, गैस नंबर 3 का पार्शियल प्रेशर P3 और ऐसी P4, P5 बहुत सारी गैसेस हैं. तो सबके पार्शियल प्रेशर को टोटल करेंगे तो वो मिक्स करेंगे, सम करेंगे, प्लस करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा. इट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ और you can express mathematically Dalton law in this way: P total is equal to P1 plus P2 plus P3. कंडीशन वहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. P total is the pressure of the mixture and P1, P2, P3 are the partial pressure of the individual gases 1, 2, 3 in the mixture where volume and temperature is constant. So it is the Dalton law of partial pressure. Now the next topic is partial pressure and mole fraction. Mole fraction is denoted by the N. Means alphabetically you can express a mole fraction by the alphabet small n and partial pressure is P. So we know that the pressure of pure gas is given by the ideal gas equation. Always remember student कि प्योर गैस जो होती है उसका प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन से निकलता है और आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT. अगर PV इज इक्वल टू nRT है इसका मतलब P का फॉर्मूला होगा nRT अपॉन V. Where volume and temperature is constant, R is the universal gas constant. So what is remaining here? P and N. Means P is directly proportional to N. Consequently, the pressure of an individual gas in a mixture of gases is proportional to its amount in the mixture. N is number of moles also. So this expression, the meaning of this expression is means P is directly proportional means द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है उसमें से एक गैस का प्रेशर ले रहे हैं, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर ले रहे हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है किसके अमाउंट इन दैट मिक्सचर. दिस इम्प्लाइज दैट द टोटल प्रेशर PT of a mixture of the gas at constant volume and temperature is equal to the sum of the pressure that individual gas exert in the mixture. मीन्स ये डाल्टन लॉ हो गया कि पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस का होगा वो ये इक्वेशन के हिसाब से कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V. अब एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस है
और वो सारी गैसेस का प्रेशर है, तो गैस नंबर 1 का प्रेशर P1 होगा। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V। इसको 1 नंबर क्यों नहीं दिए, क्यों, बिकॉज RT अपॉन V इज कॉन्स्टेंट। हाँ, दूसरी नंबर गैस का फॉर्मूला हो जाएगा P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V। P3 का फॉर्मूला हो जाएगा N3 RT अपॉन V। सिमिलरली P4, P5 and so on. So according to Dalton law, what is the formula? P total is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. So this is the Dalton law. So in place of P1 we can put in here N1 RT upon V. In place of P2 N2 RT upon V. In place of P3 N3 RT upon V. What is the common here? RT upon V is the common. What is remaining here? N1 plus N2 plus N3. Dotted line show that number of gases are here in the mixture. यानी डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी गैसेस है, तो इसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं, मतलब N4, N5, N6 ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, N1 प्लस N2 प्लस N3 का मतलब हो गया इट इज N टोटल। So what is the formula? P total is equal to RT upon V N total. P total is equal to RT upon V N total. As I told you, mole fraction in the formula is using small n, and mole fraction, actual mole fraction is shown by x. X is the mole fraction and formula is N1 upon N1 plus N2 plus N3 and so on. Mole fraction is denoted by x. अब यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारी गैसेस हैं, तो हम लोग फर्स्ट गैस के लिए निकाल रहे हैं, तो यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन x ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। पहली गैस के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अगर दूसरी गैस के लिए फाइंड आउट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तीसरी गैस के लिए निकालोगे सो x3 इज इक्वल टू N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। So mole fraction is denoted by x and you can use here number of moles n। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मोल फ्रैक्शन में स्मॉल लेटर n यूज करते हैं। n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। सो x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब N1 प्लस N2 प्लस N3 ये किसके इक्वल होता है? सो इट इज इक्वल टू n टोटल। So what is the formula? x1 is equal to n1 upon n total. What is the formula? n1 upon n total. स्टूडेंट हम लोग पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं। सो पार्शियल प्रेशर जो है वो हम लोगों ने डाल्टन लॉ से निकाल लिया है। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 P2 P3 की प्लेस पे फॉर्मूला पुट कर दिया हम लोगों ने, किसका यूज करके? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। मीन्स P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V, P3 इज इक्वल टू N3 RT अपॉन V। सारे फॉर्मूले पुट करने के बाद RT अपॉन V को कॉमन कर दिया एंड N1 प्लस N2 N3 इट इज रिमेनिंग एंड इट इज इक्वल टू N टोटल। सो फॉर्मूला विल बिकम P टोटल इज इक्वल टू RT अपॉन V N टोटल। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर गैस नंबर 1। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 प्लस N2 प्लस N3 मीन्स N टोटल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इज P1 is equal to N1 RT upon V. By arranging this equation, we will get N1 is equal to P1 upon RT upon V. And from equation 4 is P total is equal to RT upon V into N total. Arranging this equation, N total is equal to P total upon RT upon V. So equation number 1 और equation number 4 को अरेंज किए
और जो अरेंजमेंट के बाद जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूले को हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 5 में की है। इसमें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज किए तो हम लोगों को n1 का फॉर्मूला मिला। इक्वेशन नंबर 4 को अरेंज किया, सो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ n टोटल। सो द वैल्यू ऑफ n1 एंड n टोटल ये हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया है। सो वी विल गेट द फॉर्मूला x1 is equal to n1 upon n total. In place of n1, p1 upon rt upon v upon p total rt upon v. rt upon v कैंसिल हो जाएगा and x1 is equal to p1 upon p total. यहाँ से p1 का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, सो p1 is equal to x1 into p total. नाउ सिमिलरली हमने x1 लिया मीन्स गैस नंबर 1 के लिए लिया, अगर गैस नंबर 2 के लिए लोगे तो P2 इज इक्वल टू x2 P टोटल, गैस नंबर 3 के लिए P3 x3 P टोटल, गैस नंबर 4 के लिए P4 x4 P4 इज इक्वल टू x4 P टोटल एंड सो ऑन। सो ये फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बाय मोल फ्रैक्शन। यानी अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, सो पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट होगा, जो प्रेशर टोटल प्रेशर है गैस का वो उसको मल्टीप्लाई करोगे मोल फ्रैक्शन से, सो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। कोई भी इंडिविजुअल गैस का फाइंड आउट कर सकते हैं। The next topic in this chapter is aqueous tension. In aqueous tension, there are two terms which we have to understand. One is the vapor pressure and another is the saturated vapor pressure. Now, start. A vapor is a gas in contact with a liquid of some substance. Vapor सबको पता है क्या होता है, okay? For example, gas above the surface of liquid water is described as water vapor. जब हम लोग पानी को उबालते हैं और उस पर उसको कवर किए रहते हैं, जब वो कवर आप हटाओगे तो कवर के नीचे पूरे पानी की बूंदें रहती है, मीन्स वो वाटर वेपर होता है। द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इज नोन एज इट्स वेपर प्रेशर। जब पानी बॉयल होता है तो उसके जो वेपर्स ऊपर आते हैं वो सरफेस पे प्रेशर बनाते हैं, सो इट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। द प्रेशर ऑफ अ वाटर वेपर, यानी पानी की वजह से जो वेपर ऊपर आ रही है, भाप ऊपर आ रही है, उसकी वजह से प्रेशर बनता है। पानी को बॉईल किए, उसकी वजह से भाप ऊपर आई और उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, सो दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। सपोज द लिक्विड वाटर इज प्लेस्ड इनटू अ कंटेनर एंड एयर अबव इज पम्प्ड अवे and the container is sealed. Then the liquid water evaporates and only water vapor remain in the above space. After sealing, the vapor pressure increases initially, then slow down as some water molecule condense back to form liquid water. After a few minutes, the vapor pressure reach a maximum called the saturated vapor pressure. Now, what is the saturated vapor pressure? सपोज करो कि लिक्विड वाटर है, उसको सील किया कंटेनर में और एयर जो है उसको ऊपर से एयर पंप कर रहे हैं, कंटेनर सील्ड है, लिक्विड वाटर जो है वो एवापोरेट होगा, भाप बन के उड़ेगा, वाटर वेपर जो है वो स्पेस ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा। सीलिंग की वजह से वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा क्योंकि बाहर नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो इंक्रीज होगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि बाहर नहीं जा रहा है, सील है ना कंटेनर, तो सारी भाप जो है ऊपर जाकर कवर पे पूरी एकदम ज़्यादा जमा हो जा रही है। स्टार्टिंग में कम रहेगा, बाद में ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब वो प्रेशर, the pressure which is exerted by saturated water vapor is called aqueous tension। यानी वो प्रेशर जो सैचुरेटेड वाटर वेपर की वजह से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं और शो करते हैं पी एक्वस से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वाटर के वेपर की वजह से बनता है।
और जब कंटेनर को सील करोगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हो जाता है, और यही सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है। वो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? When now another condition, when a gas is collected over water in a closed container, it get mixed with the saturated water vapor in the space. अब गैस को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, ओके गैस को कलेक्ट करेंगे बेटा, वाटर के ऊपर क्लोज कंटेनर रहेगा, कंटेनर क्लोज रहेगा तो वो सैचुरेटेड वाटर वेपर में मिक्स हो जाएगी इन दैट स्पेस। द मेजर प्रेशर देयरफॉर करस्पॉन्ड टू द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ गैस एंड saturated water vapor in that space. So pressure of pure and dry gas can be calculated by using the aqueous tension. It is obtained by subtracting the aqueous tension from total pressure of moist gas. So pressure of dry gas is equal to P total minus P aqueous, means that is P dry gas is equal to P total minus aqueous tension. So aqueous tension का यूज करके हम लोग प्योर एंड ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। The kinetic molecular theory of gases is a theoretical model put forth to explain the behavior of the gases. Means ये जो theory है इससे हम लोगों को गैस का behavior समझ में आता है। Assume करो kinetic molecular theory of gases. Assumption of kinetic molecular theory of gases. First assumption, gases consist of tiny particle. वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं, मतलब गैस में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और वो पार्टिकल चाहे तो मॉलिक्यूल होगा चाहे एटम होगा। सेकेंड असम्पशन, ऑन एन एवरेज गैस मॉलिक्यूल रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देयरफॉर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसलिए गैस का एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लिजिबल बताते हैं। थर्ड assumption, the attractive forces between the gas molecule are negligible at ordinary temperature and pressure. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है। वैसे भी गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसीलिए उसमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है। गैस मॉलिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, कॉन्स्टेंटली वो लोग मोशन करते हैं एंड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली कहीं भी मोशन करते हैं, ऑल डायरेक्शन में मोशन करेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, और बार बार जो है जो गैस में वो फील है, फॉर एग्जाम्पल हमारे गैस में जो सिलेंडर होता है उसमें भी गैस फील होती है, तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो लोग बार बार वॉल ऑफ द कंटेनर पर कोलाइड होते हैं, मतलब उससे टक्कर लगाते हैं। कोलाइड होना मतलब टकरा जाना। प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द गैस पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे मैंने बताया कि जिसमें भी आप गैस को फिल करोगे तो वो कंटेनर पे वो जाके कोलाइड हो जाती है, मीन्स टक्कर मार देती है, मतलब कि वहाँ पर वो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। जब गैस कंटेनर के साथ, गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसको हम लोग प्रेशर ऑफ द गैस बोलेंगे। द कोलाइजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, which means that the total energy of the gaseous particle remains unchanged after collision. Collision जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ करता है, इट इज इलास्टिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी गैसियस पार्टिकल की होती है वो कोलाइजन की वजह से, टक्कर लगने की वजह से चेंज नहीं होती। द डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कोई भी इंस्टेंट पर हर गैस का मॉलिक्यूल जो है अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है, हेंस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे गैस मॉलिक्यूल की, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की. सो स्टूडेंट, दिस आर दी 7 assumption ऑफ काइनेटिक molecular theory of gases. What is the first assumption? Gas contain tiny particle. Second assumption, gas molecule remains far apart from each other. Third assumption, attractive forces between the gases molecule are negligible at ordinary temperature and pressure. Fourth assumption, gas molecule are in constant random motion and move in all possible direction in a straight line. They collide with each other and with the wall of the container. एक दूसरे के साथ भी टक्कर लगाते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी लगाते हैं. Pressure of the gas is due to the collision of gas particle with the wall of container. Next, the collision of the gas molecule are perfectly elastic in nature, which means that the total energy of the gaseous particle remains unchanged after collision. Next, the different molecule of a gas move with different velocities at any instant and hence have different kinetic energy, but average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Means average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So these are the 7 assumptions of kinetic molecular theory of gases. Now the next topic in this chapter is deviation from ideal behavior. An ideal gas is one that exactly follow the ideal gas equation. हमको ideal gas equation पता है बेटा, PV is equal to nRT. अब PV is equal to nRT को अरेंज करेंगे, so we will get the formula N is equal to PV upon RT. If we use 1 mole of any gas, then the ratio PV upon RT is predicted to have numerical value of 1 at all pressure. If a gas does not obey the ideal gas law, the ratio will be either greater than 1 or less than 1. Such a gas is said to be a real gas. Student, वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस इक्वेशन होगा और उसका रेशो PV अपॉन RT का 1 होगा. अगर रेशो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हुआ तो वो गैस रियल गैस होगी. मीन्स एक्चुअली what is ideal gas? So a gas that obeys all the gas law, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, बहुत सारे लॉ पढ़े ना ये चैप्टर में. So a gas that obey, वो गैस जो सारे गैस लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओबे करेगा वो आइडियल गैस होगा. A gas that obeys all the gas laws over the entire range of temperature and pressure. Okay. Second, there are no interactive forces between the molecule. ये तो सब गैस के लिए होता है. Third, the molecular volume is negligibly small compared to the volume occupied by the gas. These are point particles. So it is about the ideal gas. Now, what is real gas? Real gas does not obey Boyle's law, Charles law under the condition of temperature and pressure. A deviation from the ideal behavior is observed at high pressure and low temperature. अगर कोई बोलेगा कि आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहा है, डेविएशन कर रहा है, तो ये जो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर होता है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है. वैसे गैस जो है आइडियल मतलब गैस जो है वो गैस लॉ ओबे करती है. अगर गैस लॉ ओबे करेगी तो उसको हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे और अगर गैस लॉ ओबे नहीं करेगी तो उसको हम लोग रियल गैस बोलेंगे. और ये जो आइडियल गैस है ये सारे लॉ फॉलो करती है लेकिन रियल गैस नहीं करती. और ये कब होता है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है. इसके दो रीज़न है. द फर्स्ट रीज़न इज the intermolecular attractive forces are not negligible in real gases. These do not allow the molecule to collide the container wall with full impact. This result in decrease in the pressure. Understand? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो निग्लिजिबल होती है रियल गैस में, जिसकी वजह से गैस पार्टिकल जो है कंटेनर के साथ कोलाइड नहीं होते. कोलाइड नहीं होंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा, वो डिक्रीज होगा. सेकेंड, एट हाई प्रेशर the molecules are very close to each other.
द शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेज स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड द मॉलिक्यूल बिहेव एज स्मॉल बट हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल। प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाने चाहते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और वो लोग एक दूसरे में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगी। रिपल्सिव मतलब दूर होने वाली फोर्स, और वहाँ पे एक स्फेरिकल पार्टिकल बन जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट निग्लेजिबल। वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का निग्लेजिबल नहीं होगा। देयरफॉर लेस वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। लेस वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल रहेगा मॉलिक्यूलर मोशन के लिए। एट वेरी लो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को बहुत लो कर दो, सो मॉलिक्यूलर मोशन बिकम स्लो, मोशन स्लो हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो अटैच टू ईच अदर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो रहा था जब हाई टेम्परेचर किए थे, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है जब लो टेम्परेचर किए। हियर अगेन द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो यहाँ पर अगेन जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से डेविएट करने लगी। Deviation with respect to pressure can be studied by plotting a graph pressure versus volume. Pressure versus volume curve at a given temperature. So at very high pressure, the measured volume is more than theoretically calculated volume, assuming ideal behavior. At very high pressure, the measured volume is more than theoretically calculated volume, assuming ideal behavior. But at low pressure, measured and calculated volume approach each other. So, it is the deviation from ideal behavior. तो क्यों डेविएट होती है रियल गैस आइडियल बिहेवियर से स्टूडेंट? सिंपल है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो निग्लिजिबल नहीं होती रियल गैसेस में। वो मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती कि कंटेनर से कोलाइड करे। हाई प्रेशर अगर लेते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उनमें रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है और मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल के जैसे बिहेव करने लगते हैं। और जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का उसको हम लोग निग्लिजिबल नहीं कर सकते। जब लो टेम्परेचर करते हैं सो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्लो हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगेन वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव नहीं करते। आइडियल गैस विच ओबे ऑल द लॉ at entire range of temperature and pressure, it is known as ideal gas, and which does not obey the all the gas law, it is known as real gas. So it is about the ideal gas and real gas, which we can understand by this graph also. Always remember student, हर गैस का पर्टिकुलर प्रेशर होता है और हर गैस जो है वो कंटेनर से कोलाइड होती ही है। हर गैस जब कंटेनर से कोलाइड होगी तभी वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो PV इज इक्वल टू nRT होता है। इससे हम लोग P का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, मीन्स प्रेशर का। सो प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। इससे हम लोग n का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल का, PV अपॉन RT। नेक्स्ट थिंग, एक टर्म और हमने यहाँ पे पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग x से शो करते हैं, जिसमें हम लोग स्मॉल n यूज़ करते हैं। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल। अगर गैस नंबर 1 के लिए फाइंड आउट करना है सो x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, जितनी भी गैसेस आप यूज़ कर रहे हो उसको प्लस करके लेना। गैस नंबर 2 के लिए सो x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। और रिलेशन फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बाय मोल फ्रैक्शन। मीन्स पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं, बहुत सारी गैसेस अगर है तो हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। सो
अगर गैस नंबर 1 का लोगे तो P1 इज इक्वल टू x1 P टोटल। P1 जो है वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1 नंबर गैस का, x1 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 नंबर गैस का, और P टोटल जो है वो सारी गैसेस का गैसियस मिक्सचर का प्रेशर हो। सो स्टूडेंट, these are the topic from the chapter number 10. I hope you understand. The next topic we will study in the next lecture. Thank you so much.